हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो के अंदर एंड द टॉपिक इज गुड व्हाई। सो टुडे द लैंग्वेज व्हिच आई विल बी यूजिंग इज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. The reason is that the topic is very interesting and very sensitive and very important points to learn. So let's come and dive deep into the topic. And today's topic is why Gen Z is too sensitive and they cannot handle pressure, and they generally go for the suicidal tendencies. And most of the people also even go for the suicide. So आज हम इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट आई विल शेयर 5 different reasons why Gen Z is too sensitive and what happens to them so they cannot handle the pressure, and what is the call for action so that we can avoid our coming generation to get into the trap of the suicidal tendencies. So we will find today why Gen Z is too sensitive. So first I want to discuss one liner with you. The people think that Gen Z is weak, but I don't think so. They are smart, they are talented, and they know how to do things in a very short span of time. So what is happening? What I see, they are overstimulated, they are under anchored, and they are over pressure. So I am repeating again. They are overstimulated, they are under anchor, and they are over pressure. So let me come to my first point. Why Gen Z is becoming a sensitive and what is happening these days with them. So first thing is, the Gen Z does not have a tolerance in them. And why? Because, so first let me take one shlok from Bhagavad Gita which tells about the tolerance. The shlok is from the chapter 2 and the 14th shloka. So it tells, Sparsha tu matra kaunteya tam titiksha bharta. So here the word titiksha, the Lord has used the word titiksha. Titiksha means the kind of a patience and the tolerance you need to help you to tolerate the sufferings in your life. So इसका कहने का मतलब है, भगवान इसमें कह रहे हैं, कौंतेय, जैसे सर्दी और गर्मी आती है लाइफ में, जैसे सर्दी आएगी वैसे गर्मी आएगी, वैसे गर्मी आएगी सर्दी आएगी. तो दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं, कॉन्ट्ररी पार्ट्स हैं. तो आपको दोनों को टॉलरेट कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर. जैसे सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा. तो आप अगर ये दो पहलू सिक्के के जानते हैं तो आप संभाल सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर. तो आपको उसके लिए टॉलरेंस चाहिए. बट इन टुडेज सोसाइटी, दे हैव द टुडेज जनरेशन, द न्यू जनरेशन इज गेटिंग एवरीथिंग so easily, so they are not able to tolerate. When we compare it to the older times, the people does not have a opportunity to get the things easily. For example, let me talk about myself. My father, when I get into a very good college of nautical engineering, my father does not give me car to go to college. He does not even gave me mobile to call to a family or to friends at that point of time. I just got my mobile in the second year. So at that point of time, I was very irritated, and sometimes I even used to fight with my father that we are just into top college of India, and still you are treating us like a small kid. You are not giving us the luxury, and even we can afford that luxury. So when in my life I get out of the college and I found myself in the mid journey where I have to struggle and I have to find my startups running and keep them going in my life, I found that just the way that my father has taught me and brought me a lot of struggles in my early childhood, it helped me to find the solutions for the life with my creative and innovative thinking. I never ever craved for the things I cannot find in my life. So it helped me. And वैसे भी चाणक्य पंडित ने बोला है बहुत सही तरीके से, आपके बच्चे जब होते हैं तो आप 14 साल तक उनको बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह उनके साथ बिहेव करिए, और 14 से 15 साल के बाद उनके आप फ्रेंड बनिए. तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि 14 साल तक आपको अपने बच्चों को मतलब मारना भी है, पीटना भी है, और उनको समझाना भी है. बट 15 साल के बाद में 14-15 साल की जब वही एज ब्रैकेट क्रॉस करते हैं तो आप उनके फ्रेंड बन जाइए. आप उनको प्यार से सिखाइए, उनको अच्छे से सिखाइए. तो आज
टॉलरेंस की कमी हो गई, पहला पॉइंट आया। देन हम दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमें बताता है प्रेशर। भगवत गीता का पॉइंट है 3.30, चैप्टर 3 से 30 श्लोक में भगवान बोलते हैं प्रेशर विदाउट पर्पस। हम ओवर प्रेशर्ड हैं सोसाइटी के अंदर, और इसका मतलब क्या, भगवान ने श्लोक के अंदर साफ साफ बोला है कि वट एवर यू डू, यू जस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस एंड फ्रॉम द रिजल्ट्स। You surrender everything to me, and whatever I will give you, it will be the best for you. So, but in today's society, what is happening? In today's society, only one thing is happening. Every ad, whatever you see in your television, your laptop, your mobile, everything is just based that you are body and you are here to enjoy your life. So, whenever we get into a college, what we need iPhones, we need iPad, we need AirPods, we need everything to be a top class. We don't earn for it, but we yearn for it. You know, आपको कमाना आना चाहिए, आपको मांगना नहीं आना चाहिए। और हम अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, हम कमाते नहीं हैं, हम उनसे मांगते हैं। तो जब हम उनसे मांगते हैं तो बड़ी मैं बहुत अपने किसी के साथ बात कर रहा था, तो उसमें वो बोलते हैं कि बताइए, एक यंग किड थे, जो एक यंग किड, ही वाज टेलिंग टू हिज पेरेंट्स कि मेरा आप लोगों के साथ रहने का मूड नहीं करता। तो उन्होंने कहा वो ऐसा क्या हो गया बेटा? उन्होंने कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर नहीं ला सकता, मैं अपने मोबाइल को रिचार्ज नहीं करा सकता, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बहुत परेशान करती हैं आपके साथ। तो मदर फादर बहुत स्मार्ट थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसके लेसन सिखाते हैं। तो उन्होंने उसको बोला कि एक काम करो, यू आर अलाउड टू लिव एनीवेयर, यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वांट टू बी। जब भी घर रात में आना है आओ, जब भी क्या कहते हैं, जैसे भी जो डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाना है मंगाओ, गर्लफ्रेंड को लाने लाओ, नेट जो भी करना है सब कुछ करो, यू आर अलाउड टू डू एवरीथिंग। जस्ट 3 शर्तें हैं हमारी। पहली शर्त, अपनी कॉलेज की फीस खुद भरोगे, हम नहीं भरेंगे। दूसरी चीज़, इस घर का जो भी वाईफाई का रिचार्ज है वो आप खुद कराओगे। तीसरी चीज़, जो आप हमसे पैसा मांगते हो अपने स्नैक्स मंगा लेके, जब आपके फ्रेंड्स आते हैं वो आप खुद अरेंज करोगे। जैसे ही पेरेंट्स ने ये 3 बात बोली अपने उस उनार बेटे को, तो उससे क्या कहा, नहीं पापा मैं बहुत खुश हूँ, आपके साथ रहना ही चाहता हूँ, और जैसे आप लोग रखोगे मैं वैसे ही रहूँगा। सो मैंने भी आपको बोला, यू हैव टू अर्न इट, यू डोंट हैव टू यर्न इट। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, हम लोगों ने ओवर प्रेशर कर रखा है अपने आप को। क्यों? हम लोग सोचते रहते हैं लाइफ के अंदर कि दैट हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन एक्चुअली हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। उसका थर्ड पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि हम सेकंड पॉइंट हमारे थर्ड के साथ लेंगे, सोशल मीडिया कंपैरिजन। आजकल हमारे फोन्स के अंदर फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, और डेली ब्लॉगर्स हैं जो यूट्यूब से हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी कमा रहे हैं। और वो क्या शो करते हैं कि उन्होंने यूट्यूब पे अपनी डेली दिनचर्या डाली और उससे वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी कमा सकते हैं। और कई लोगों ने कोशिश करी है, वो तब भी नहीं कमा पाए। वो अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं। वो क्या देखते हैं कि उस ब्लॉगर ने आईफोन लिया, मुझे आईफोन लेना है। आपको ज़रूरत है उस आईफोन की? वो 1.5 लाख का फ़ोन आपको ज़रूरत है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कंपनी, एनी ब्रांड और एनी वैल्यू। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, do you require that so much costly phone? Even if you are from a family who's ultra luxury, who is ultra rich, you should find a purpose of finding anything in your life. अगर उसको पाने के पीछे पर्पस नहीं है, then you will have a problem in your life. सोशल मीडिया ने क्या किया हमारे साथ? एक ही काम किया, it has made us exposure to a global level. उसने हमें भी एक्सपोज कर दिया और उसने ग्लोबली को भी हमें एक्सपोज कर दिया, तो हम इंटरचेंज हो गए आपस के अंदर। तो अब मुझे पता है कि मेरे बराबर वाला क्या कहते हैं रॉल्स रॉयस लेकर आ रहा है, तो मुझे भी वही लानी है। अब मुझे ये पता है कि बराबर वाला हार्वर्ड जा रहा है, तो मुझे भी हार्वर्ड जाना है। मैं एक बात समझना चाहता हूँ, हम लोग हार्वर्ड जाते हैं, स्टैनफोर्ड जाते हैं, या हम IIM अहमदाबाद जाते हैं, अगर हमें स्टार्टअप ही खोलनी थी और कुछ बड़ा ही करना था अपनी लाइफ में, अपने सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बनाना था, तो हमें किसी MBA कॉलेज जाने की जरूरत क्या है? Have you made any calculation in your life? The amount of money you invest in your MBA for doing 1.5 crores and the amount of interest you will do while repaying that amount, which accounts for 2 crore or 2.5 crore, cannot let you out of the debt. If that amount you can invest in your business as a startup, you can multiply that money in 4 or 5 years to 10x or 20x.
So then why we need to go to that college? Today, a lot of my friends have been passed out from those colleges. And they just tell me, only a purpose for going to those colleges after doing your graduation is only one thing. You have a good network, which will help you to find a good job. Secondly, you will get a good placement because these colleges have a good ranking and a lot of good companies come to those colleges and you get a placement out there very easily. तो अगर जॉब करने का पर्पस है तो वो कॉलेज जाने का पर्पस ठीक है. अगर जॉब करने का पर्पस नहीं है तो वो कॉलेज जाने का पर्पस क्या है? अगर स्टार्टअप ही करना था एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, स्टार्ट करो ना, घिसो जूते और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि जो अमाउंट आप एमबी में खर्च करने वाले थे वही अमाउंट आपने अपने स्टार्टअप में लगा दिया. अरे जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं. सोशल मीडिया ने क्या किया, हमें एक्सपोज कर दिया और वो एक्सपोजर हमें लाइफ में हमें वीक कर रहा है, क्योंकि हमें ऑप्शन दिखाई देने लगी हमारी लाइफ के अंदर कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं. पहले जितने भी लोग थे हमारे से 50 साल 60 साल 100 साल बड़े लोग, उनके पास एक्सपोजर नहीं था. वो लोग लोकल लोगों को देखते थे तो उनको लगता था इस गांव में वो कर रहा है, अगर वो इतने लाया मैं भी इतने लाया, तो उनका एक्सपोजर बहुत कम था, तो कंपैरिजन बहुत कम लेवल पे होता था. वो लोग टॉलरेंट थे. चौथे थिंग, हम लोग इमोशनली वीक. वी हैव नेवर ट्रेन्ड आवरसेल्व्स एज, हमारे पेरेंट्स हमें ट्रेन नहीं किया, हम भी ट्रेन नहीं हुए. अभी रिसेंटली मैं एक ट्रिप के लिए बाहर गया था, तो मैंने वहाँ रियलाइज़ किया, मैं लोगों से मिलता हूँ तो वहाँ की कल्चर के बारे में, वहाँ लोगों के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ. वहाँ मुझे पता लगा ताइवान के बारे में कि आफ्टर योर स्कूल और योर ग्रेजुएशन एवरीवन हैज़ टू एडमिट इनटू अ आर्मी for 2 years. Otherwise, they cannot get a job, they cannot start their own business. The reason is simple. The government wants every citizen to be very disciplined and they should be trained enough to survive the difficulties of a life. And the army gives you discipline for that. First, you learn to wake up early. Second, you learn to sleep at time. आजकल हम लोग क्या करते हैं, 11 बजे से बिंज वॉचिंग स्टार्ट करते हैं, चाहे वो रील्स हो, नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, ये सब हो. हमारे सोने का टाइम खत्म हो चुका है, हमारे जागने का टाइम खत्म हो चुका है. मैंने अभी 3 रील्स के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर बताया. अगर आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको सोना होगा, अच्छी नींद लेनी होगी. अगर आप अपने सन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा और आपको सूर्य को अर्घ देना होगा. वो आपके चक्रास को एक्टिवेट करेगा, आपको एनर्जी देगा पूरे दिन एक्टिवली परफॉर्म करने. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, हम लोग इमोशनली वीक है बिकॉज वी हैव नॉट बीन ट्रेन्ड. उसका एक रीजन है, हमारे पेरेंट्स ट्रेंड नहीं थे, उन्होंने हमें ट्रेन नहीं किया. तो वो ट्रेंड नहीं थे, उन्होंने हमें ट्रेन नहीं किया, हम लोग भी वैसे ही हो गए. एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अस कि वी कैन डू समथिंग बिग. इतने सारे सेलेब्स हैं, मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, अच्छे सेलेब्स हैं जो आज बहुत अच्छा कमा रहे हैं, साल का 100 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए सिंगल पर एनम ओनली. बट उनकी लाइफ में एक फॉल आया और वो लोग बहुत ज़्यादा टूट गए, डिप्रेशन में चले गए. उसका रीज़न था क्योंकि दे हैव नॉट बीन ट्रेन्ड. ओवर एक्सपेक्टेशन थी. और भगवद गीता के 2.47 के अंदर बहुत श्लोक के अंदर बहुत स्पष्ट आता है ये, कर्मण्यवाधिकार से माँ फलीषु कदाचन के अंदर, कि कर्म करना हमारे हाथ में है, कर्मों का फल हमारे हाथ में नहीं है. कर्म करने के लिए जो प्रोसेस है वो भी हमारे हाथ में नहीं है. तो आप कर्म किस प्रोसेस से करोगे वो भी भगवान डिसाइड करेंगे, और उस कर्म का रिजल्ट क्या होगा वो भी भगवान डिसाइड करेंगे. तो जब हमें ऑलरेडी पता है तो फिर हमारे, क्योंकि हमने ट्रेनिंग नहीं हुई ना हमारी, अगर हम ट्रेंड होते तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते. 4 रीजन हमें मिले. जेन ज़ी इज नॉट वीक, दे टू सेंसिटिव बिकॉज दे नॉट बीन ट्रेन्ड. एंड व्हाट हैपेंस, व्हाई डू, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. हमें 4 रीजन जान लेंगे जेन ज़ी वीक क्यों है. अब एक मेजर पॉइंट में बात करते हैं. वो मेजर पॉइंट क्या है? मेजर पॉइंट ये है, व्हाई दे गो फॉर अ सुसाइड. द मेन रीजन इज व्हेन यू सी दैट योर पेन is more than the ray of a hope, and you see your pain is never ending, then you want to end that pain. You do not want to die, you want to end that pain. If someone has told you that you're not going to die, you're only killing, because in Bhagavad Gita 2.20 it has been told by Krishna himself that we are just changing the clothes. We are not this body, we are Atma. And
Atma gets transferred from this body to another body. So we have to complete our karmic cycle. If we're not able to complete, if we go for the suicide, then we have to come again. And we have to now bear the repercussions of the previous life. And what we did by doing that suicide, we have to bear the more repercussions now. If your father has trained you that what the importance of the life is, then you won't be doing this heinous act in your life. You know? So, when your pain is more and your hopes are less, then you go for the suicide. And when you realize that you're Atma and you're not this body, if you're going to kill this body also, so then Atma has to travel to another body. Then you're never going to do suicide. We are not talking about the medically ill patient. We are talking about the Gen Z, those who are going for the suicide because they're not able to get into IIT. They're not able to get into good IIMs or something like that. Because some people can encounter our video by saying that a lot of people are doing suicide. But they are the patients, those who are having a problem of serotonin, dopamine, and Alzheimer, depression, something like that. They are the medically ill people. They require medical help from the doctors. We're talking about the Gen Z. Now, we will come to call to action. What we can do, and how as a parents and how as a Gen Z, we both have a responsibility towards each other. So we will have some call to action. So first, I have a call to action for parents. And for parents, let's get 2 points done. First, when you are planning for a child, when you are going for a conception of a birth for a new child, go for a Garb Dharan Sanskar. It has been mentioned in astrology properly that how you can go for a Garb Dharan Sanskar. If you get a good seed in your womb, so then you can have a good child in your life. For that, you need to plan a lot. So there is a proper ceremonies happening. You can have a proper priest who can guide you. Then, see, in today's scenario, there are 2 things happening. Doctors are training you and making you weak. We are not against the doctors. We need to understand and we need to be more strong. We need to use some Ayurvedic techniques. We need to use yoga if we want to give a good generation to this society. See, first you need to have a Garb Dharan Sanskar. Second, while pregnancy for the 9 months, the lady has to do yoga. She has to eat a good food. She doesn't have to watch all that crap which is going on Instagram, YouTube, something like that. And if this is happening, you cannot have a good child. Because whatever you see, the child have that impression inside, and then he will be just like you. And now it depends on you. You want your child to be something different, something miraculous, something real example for this world, or you want to be like just degraded soul like you. First thing for the parents. Second thing, whenever you have a child, if you have a good family, if you are a rich or ultra rich, something like that, don't give them everything on a platter. उनको थाली में परोस के मत दीजिए. Let them earn their rights from you. For example, जैसे यूरोपियन वर्ल्ड्स में, यूएस में क्या होता है, दे डोंट हैव अ मेड. वो लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं बचपन से, आप जाओ बाहर की फ्रेंड्स को पेट करो. सो व्हाट you will have a kid today for this, doing this job. Then they will ask, you have to wash your clothes for the entire family on this weekend. What you will get? You will get some ninja video games, something like that. So you have to make your kids earn something from you. Don't give them on a platter. 2 चीजें मेरे पेरेंट्स के लिए थी. अब हम बात करते हैं एज ए जेन जी हमें क्या करना चाहिए. अटेंड सम मोटिवेशनल कोर्सेज. मोटिवेशनल का मतलब ये नहीं है जहाँ पे ये कहें कि ये वीडियो देखो स्टीम कैसे बन रही है, 100 डिग्री में स्टीम बनती है, 80 डिग्री में पानी रह जाता है. वो मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए आपके हार्मोन्स को रश करेगी, आपके एंडोर्फिन्स को बढ़ाएगी, डोपामिन को बढ़ाएगी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए आगे नहीं लेके जाएगी. तो आपको क्या करना है, आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना है. स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता. सी, आई एम इनटू अ कृष्ण कॉन्शियसनेस. आई एम अगेंस्ट सेइंग दैट यू कैन बी saying that I am a bias towards Bhagavad Gita, I am biased towards Krishna, but that's not the case.
Bhagavad Gita is the most selling book as per the Guinness World Record book. Is the most powerful book. In the astrology also, a lot of people give Bhagavad Gita shlok as a remedy. If you have a certain problem in your life, if you recite this shlok for 25,000 times, you will have a solution for this problem. So, a lot of things in Bhagavad Gita is there. I have a list of those shlokas with me also. So, for example, Bhagavad Gita helps you, teaches you philosophy, which gives you a guidance for your life. It's just like a remote. For example, in remote, you know how to navigate your television. Similarly, Bhagavad Gita gives you a remote of a life, which helps you to navigate your life easily with the manual, with the code of ethics. So, for example, Bhagavad Gita tells you that you can do your karma, but you do not have the power on your result. Then Bhagavad Gita teaches you that you are not the body, you are the Atma. So all these comes from the Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita helps you, inclines you, your sole purpose. Then second thing, we need to exercise discipline in our life. We cannot sleep at any time. We cannot wake up at any time. We cannot leave our bed idle when we are waking it up from there. We need to practice some discipline. We need to have exercise time in the morning itself. इसके 3 रीजंस है. पहला रीजन क्या है? हमारी बॉडी क्लॉक आयुर्वेद के हिसाब से डिवाइडेड है. हमारे आयुर्वेद के अंदर 3 साइकिल्स होती हैं, कफ पित्त वात. तो हमें एक्सरसाइज कब करनी चाहिए? कफ के टाइम पर करनी चाहिए. कफ का मॉर्निंग में जो टाइम होता है वो 6 से 10 होता है, 6 to 10. उस टाइम पर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी में एक एनर्जी, एक एक्टिवेशन आता है. कफ इज द टाइम ऑफ अ स्लो. तो स्लोनेस को रोक कर कफ हमें एनर्जी देता है. मतलब जब हम एक्सरसाइज उस टाइम पे करेंगे, हमारी बॉडी एक्टिवेट होगी. हम पित्त के टाइम पे एक्टिविटी करेंगे. पित्त का टाइम क्या होता है? खाना खाने का टाइम होता है. उस समय हम खाना खाएंगे, हमारा खाना अच्छे डाइट, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बाइल जूसेस रिलीज होते हैं. हमें इवनिंग में क्यों नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज? इवनिंग में अगर हम कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि कफ का सेम साइकिल इवनिंग में भी रिपीट होगा, बट कफ का साइकिल जब इवनिंग में रिपीट होता है वो लेट आता है, वो काफ़ी लेट आता है. अगर आप उस टाइम पे करते हैं, उसका एक प्रॉब्लम होगी, एक्सरसाइज करने के बाद हमारे हार्मोनल लेवल्स बढ़ जाते हैं और हमें रात में सोना होता है. तो वी नीड टू स्लो आवर बॉडी डाउन. अगर आप रात में एक्सरसाइज करेंगे तो जो आप कॉफ़ी पीने के बाद जैसे वेकअप हो जाते हैं, आपकी माइंड एक्टिवेट हो जाता है, उसी तरीके से आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी. तो आप टाइमली नहीं सो पाएंगे. और मेरा टाइमली सोने का मतलब है एट द मैक्स 10 और 11, ज़्यादा से ज़्यादा 11 के बाद. वैसे तो आयुर्वेद बोलता है कि हमें 9:30-10 तक सो जाना चाहिए. तो अगर आप 11 बजे तक जग रहे हैं तो वो गलत है एक्चुअली. लेकिन ठीक है, आज की सोसाइटी के हिसाब से हम इसको टाइमिंग को 11 बजे तक कर सकते हैं. तो मैंने पहला पॉइंट बताया कि हमें स्पिरिचुअल के इंक्लाइन होना है. स्पिरिचुअल इंक्लाइन होने के लिए हमें राइट फिलॉसफी जानना ज़रूरी है. तो आपको भगवद गीता पढ़नी चाहिए. और हम लोग इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं कि हम भगवद गीता पढ़ सकते हैं. सडनली मैंने कहा आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लगाना होगा. उसके लिए यू हैव टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग. आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते, आप थोड़ी देर करो. उसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ. आप 15-20 मिनट क्विक योगा करो या क्विक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर हो सकता है 30-40 पुशअप्स, 30-40 स्क्वाट्स, 30-40 1.5 मिनट फास्ट रनिंग ऑन द स्पॉट खड़े होके. तो ये 15 से 20 मिनट भी जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको एड्रेनलिन रश और पुश देगा, आपकी बॉडी को एक्टिवेट करेगा. और फिर इसके बाद 15 से 20 मिनट आप प्राणायाम करिए. प्राणायाम के अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए. शीतकारी प्राणायाम, क्या कहते हैं, लोम विलोम, बहुत सारी चीज़ें, भ्रामरी, कई सारे प्राणायाम है करने के लिए आप कर सकते हैं. कुंभक, ऐसी कई सारी चीज़ें. प्राणायाम क्या करता है? आपकी सांसों पे आपका कंट्रोल लेकर आता है. जब आप सांसों की कंट्रोल को समझ जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप अपने थॉट्स को भी समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं. लाइफ में बहुत कुछ गलत होता है, मेरे साथ भी हुआ था. मैंने भी कई बार सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, पर मेरी ट्रेनिंग अच्छी हुई थी. उस ट्रेनिंग ने मुझे उस टाइम से मुझे बचाया. अगर मेरी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई थी तो मैं भी उस पॉइंट पर, वो सामने वो जो फंदा होता, उस पर अपनी गला को लटका कर मैं भी लटका हुआ होता. तो मेरे को तब रियलाइज़ होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी करी. अगर वो मेरी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई होती तो मैं भी, मेरी भी फ़ोटो आज लगी हुई होती और उस पर एक माला सड़ी हुई. चौथी चीज़, वी नीड टू लर्न ग्रैटिफिकेशन एंड कंपैशन. वी नीड टू बी थैंकफुल. अगर थैंकफुल समझ में नहीं आ रहा, लाइफ में अच्छे कॉलेज से पास आउट नहीं हो पाए, अच्छी जॉब नहीं मिल पाई,
ड्रीम डिजायर्स थे, अच्छी लड़की से शादी करना या अच्छा फ़ोन खरीदना, सब नहीं हो पाया, तो स्टे फॉर सम डेज विद द पीपल दोज आर नॉट कैपेबल लाइक यू। मेरे कहने का मतलब क्या है, आपके पास 2 आँखें हैं, आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाइफ के अंदर। आप एक दिन ब्लाइंड स्कूल में जाकर उनके साथ 2 से 4 घंटे स्पेंड करके देखो, यू विल रियलाइज हाउ लकी यू आर। यू कैन सी द वर्ल्ड विद दीज 2 आईज। आप उन लोगों के साथ बैठकर देखो जिनके 2 हाथ नहीं है, आप आज खाना खा सकते हो, आप इन दोनों हाथों से मेहनत करके दोबारा खड़ा कर सकते हो कुछ भी। उन लोगों के साथ बैठ के देखो जो व्हील चेयर पे चलते हैं, जिनके 2 पैर नहीं है, और वो फिर भी ओलंपिक्स के अंदर मेडल लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। आप इन दोनों पैरों पे चल के मेहनत कर सकते हो। देयर इज नथिंग टू लूज। सो देयर इज सो मच टू से थैंक यू टू द कृष्णा और एनीवन यू बिलीव, टू द लॉर्ड, आपको जो भी लगते हैं, that you are lucky that you have 2 hands, 2 legs and 2 eyes. So compassion gives you a way and a ray of a hope. So whenever you are in a pain, then a ray of a hope can become higher and can lower down your pain and gives you insight to come out of this vicious cycle and end this pain. So I thank everyone and really praise upcoming generation. They're not weak, they're intelligent, they're smart, but they're over pressurized, overstimulated. So stop giving them overstimulation by exposing them to so much information and the knowledge, and don't give them expectations that you have to become doctor, you have to become IAS, you have to become someone like that. Just ask them. There's so many people with so much things in their hand. We need a world with the people with more compassion and more grateful what we have right now. We need the world like that. So I urge all the parents to watch this video very sincerely and treat your kids and help them to come out of this phenomena. Otherwise you will lose them and you won't be able to get out of this site. Thank you.